Welcome to another edition of Power Statement. And today's power statement is critical, it's valuable, and it is going to change your life forever. This is what my belief is. Now, friends, हम सब लाइफ में गोल सेट करते हैं, बट हम सब लाइफ में गोल्स अचीव नहीं कर पाते. Everybody wants a good life, not everybody gets a good life. Everybody wants a good life, not everybody gets a good life, and there is a big reason behind it. And that reason I'm going to discuss in today's power statement. Everybody wants a good life, and not everybody gets a good life. Why? There's a reason behind it. अब देखिए, होता है ऐसे कि everybody set some goals, big, mediocre or small. Everybody sets certain goals. अब हर गोल में आपको आउटपुट चाहिए होती है, तभी वो गोल अचीव हो पाता है. पर लोग क्या करते हैं, वो चाहते हैं दे शुड नॉट डू एनीथिंग एंड दे शुड स्टार्ट अचीविंग द गोल्स. तो आज का पावर स्टेटमेंट इज मेंट फॉर दीज चैलेंजेस एंड सर्कमस्टांसेस, हाउ टू ओवरकम देम. और इसका बेस है दैट एवरीबडी वांट्स अ गुड लाइफ, नॉट एवरीबडी गेट्स अ गुड लाइफ, एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. So let's start. Now, what is today's power statement? Today's power statement is either you can have pleasing methods or you can have pleasing results. Either you can have pleasing methods or you can have pleasing results, but you cannot have both. Either you can have pleasing methods, या तो तरीके pleasing हो सकते हैं, or you can have pleasing results. Friends, these are two types of approaches. The first approach is of having pleasing methods. अब pleasing methods क्या हैं? For example, if a person wants to achieve a goal, पर वो methods बहुत effortless चाहता है, जिसमें hard work कम हो, जिसमें failures कम हो, challenges कम हो, और बड़ा goal achieve कर ले. तो आप मुझे खुद बताइए, can this be a possibility? No. When you are asking for pleasing methods, your approach is altogether of not achieving the goal. रिजल्ट से व्यक्ति वही चाहता है जो हार्ड वर्किंग आदमी को मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज वर्किंग 10 to 15 hours a day, तो उसे वो आदमी कभी बीट नहीं कर सकता जो 1 से 2 या 2 से 4 घंटे दिन में काम करता है. एंड इट्स फॉर श्योर, बाय वर्किंग फॉर 5 hours you cannot beat a person who is working 15 hours a day, and that too in the right direction. So pleasing methods का मतलब है काम कम करना पड़े, एफर्ट्स कम लगाने पड़े, आपकी दिनचर्या वैसे ही चलती रहे जैसी चलती रहती है, आप वैसे अपने कंफर्ट जोन में सोते रहें, वैसे यू कैन वॉच एंडलेस मूवीज थ्रू आउट द डे, और आपको आपके गोल्स, आपके रिजल्ट्स मिल जाएं. क्या कैसी पॉसिबिलिटी है? नो, देयर वोंट बी अ पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट in this universe like this. On the other hand, there are pleasing results. Either you can have pleasing methods or you can have pleasing results. अब pleasing results क्या हैं? अगर आपको pleasing results चाहिए, so you have to start loving the results so intently that work should start seeming very easy to you. Love the results so intently that the work starts seeming वेरी सिंपल टू यू. बहुत सिंपल लगे. अपने रिजल्ट को आप इतना ध्यान से देखें, इतना लव करें कि आपका जो काम है वो उसके बेस पे आसान हो जाए. तो ईदर यू कैन हैव प्लीजिंग मेथड्स और प्लीजिंग रिजल्ट्स. और जब आप प्लीजिंग रिजल्ट्स की बात करते हैं, यू आर रेडी टू पे व्हाटसोएवर इट टेक्स, बिकॉज आपको पता है that everybody wants a good life and not everybody gets a good life, and the reason is कि लोग बड़े बड़े गोल बना तो लेते हैं, but they do not know how to fulfill those goals, because goals achieve करने में आपको hard work, labor, redoing, re-editing और बहुत बहुत ज़्यादा पेन से गुजरना पड़ता है, तब जाके आप गोल्स अचीव कर पाते हैं. Now, what comes in the next stage? If people fail to achieve their goals, they never blame themselves. They blame the environment, they blame people, and then they blame society. ऐसा ही होता है. जब आपके प्लीजिंग मेथड्स होते हैं और आप गोल अचीव नहीं कर पाते, तो आप अपनी कमी को नहीं देखते, then you start seeing the problem with the society.
सब कुछ मिल जाता है इस दुनिया में, अपनी गलती नहीं मिलती. But on the other hand, if you talk about, people, those who want pleasing results, तो उनको पता है कि किसी को ब्लेम करने से आउटपुट इज गोइंग टू बी निल. आपको कभी वो रिजल्ट नहीं मिल सकते ब्लेमिंग से. ब्लेमिंग से इनफैक्ट आपकी सेल्फ एफिकेसी पर इफेक्ट पड़ेगा. यू विल स्टॉप थिंकिंग पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ एंड पॉजिटिव अबाउट अदर्स, एंड विच इज गोइंग टू बी वेरी ड्रास्टिक सिचुएशन. सो इफ यू वांट टू गो फॉर योर गोल्स, तो कभी भी आपके पास प्लीजिंग मेथड्स नहीं होने चाहिए, because with those methods you always fail to achieve your goals. जो लोग प्लीजिंग मेथड्स को लेके चलते हैं, वो हमेशा छोटे छोटे सर्कमस्टेंसेस और चैलेंजेस में गिव अप कर देते हैं. बट ऑन द अदर हैंड, जो लोग प्लीजिंग रिजल्ट्स को लेके चलते हैं, दे ऑलवेज थिंक दैट व्हाट द बेस्ट दे कैन गिव. और उनको लगता है कि मैं वर्किंग हार्ड, वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन, बिकॉज हार्ड वर्क भी अपनी जगह है, बट हार्ड वर्क इफ इट इज़ नॉट डायरेक्शनल, इवन देन इट इज़ गोइंग टू बी अ फियास्को. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये बिलीव करते हैं कि मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूँ, but they never plan before doing the hard work. And friends, I'm telling you one thing, आप इस बात को ज़रूर implement करिएगा. Before start doing anything, before you do anything in life, आज का आप दिन बना रहे हैं तो plan it on paper. आप कोई content develop कर रहे हैं, plan it on paper first. बिकॉज वंस यू प्लान इट ऑन पेपर, आपके दिमाग में ना एक इमेज रहेगी दैट व्हाट एग्जैक्टली आई हैव टू अचीव इन दिस वर्क आई एम डूइंग. बट अगर आप यू रिलाई ऑन योर ब्रेन टू मच और आप कहेंगे नहीं नहीं मैं गोल अचीव कर लूँगा विदाउट प्लानिंग, यू आर गोइंग टू फेस चैलेंजेस विच यू शुड नॉट फेस. सो फ्रेंड्स, आइदर यू कैन हैव प्लीजिंग मेथड्स, या तो लाइफ में प्लीजिंग मेथड्स अडॉप्ट कर लीजिए. बिकॉज एक कॉन्सेप्ट है इन दिस वर्ल्ड दैट समथिंग फॉर नथिंग, और ऐसा नहीं होता है. आपको कुछ नहीं मिलता है बगैर कुछ किए. तो ईदर यू कैन हैव प्लीजिंग मेथड्स, ऑप्ट फॉर देम, एंड गो फॉर एन नंबर ऑफ चैलेंजेस, और ईदर यू कैन हैव प्लीजिंग रिजल्ट्स, बट यू कैन नॉट हैव बोथ. और एक चीज़ ज़रूर करिएगा बिफोर अप्लाइंग दिस स्टेटमेंट इन योर लाइफ, गो फॉर सम एटीट्यूड एडजस्टमेंट. व्हाट इज एटीट्यूड? एटीट्यूड है नज़रिया, किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया. उसको आप अगर चेंज कर लेंगे तो आपकी आउटपुट्स अब वही होंगी जो आप चाहते हैं लाइफ में. सो विद दिस नोट आई एंड टुडेज स्टेटमेंट. और फ्रेंड्स, इफ़ यू आर लाइकिंग माई वर्क, do like, share and subscribe my videos, and thanks for honoring me with your presence till the end, by staying till the end, and thank you very much.